Good morning, students. Welcome back to the class. Students, our today's topic is electric field intensity. Today we are going to answer few questions. Some of the questions I have chosen are conceptual questions, and we will also solve few numericals based on this topic, that is electric field intensity. I'm not going to explain you electric field intensity in detail because this topic has already been done with you by Chip sir. He has explained you about electric field intensity and all the basic concepts related with it in detail. So I'll be doing a little recap of all these things because there are certain facts which you people need to know before proceeding further. So for your recapitulation of the things which you have already done, now let's come. What is electric field? All of you know what is electric field. Electric field is the region or a space, or for example this I have taken a source charge. What is this? This is a source charge. You all know what is source charge and what is test charge. So this is the region I have taken around this source charge. This is the region or the space around this source charge in which its environment, in which its effect can be experienced if we place some another charge anywhere at any point in this space. For example, if I put a charge over here, it will experience force because of this, and that force is force of repulsion if we choose a charge to be positive here, and if it is a negative charge then the force of attraction will be felt by this charge due to this charge, due to this source charge. Now let's talk about what is electric field. Okay, what is electric field? Electric field is electric field intensity rather. Electric field intensity, it is the force. Electric field is the region or the space around a charge in which its experience or its environment can be felt by some another charge placed anywhere in this region. And what is electric field intensity? It is the force experienced by a unit positive charge anywhere in an electric field. Okay, so as you all know ki, the formula to give force between two charges, suppose here we put a test charge Q naught. ठीक है, इस पॉइंट पर हम कहीं पर भी at a distance R we put a test charge Q naught. So what will be the force of this is unit positive charge. One thing is clear, that the test charge is always chosen as a unit positive charge, means its magnitude is taken as 1 and its sign is positive. Then what will be the force experienced by it? It is upon R square. And if we take Q naught here, it is force experienced per unit charge. And what is that? This is what we call as electric field intensity. But here one thing I have to write down, that is Q naught is very small and it approaches to 0. Why Q naught is very small? This we will discuss in the questions. I have already written those questions for you. I will explain in that case. Okay, so remember that any charge which is placed at this point, means electric field intensity is the force experienced by a unit positive charge, means a charge which is going to have a magnitude of 1. That is equal to electric field intensity or electric field strength. If some another charge
suppose at this point, because the distance r is changing as we move away from this source charge, so the electric field strength also depends upon the distance of the test charge from this source charge. As we move further away, the electric field intensity will go on decreasing. But if we have chosen this point, ठीक है, which is at a distance r from this source charge, now instead of this q naught, suppose we put some charge q, then it will experience force because at this point there is an electric field strength because of this charge. So जहां पर भी electric field होगी वहां पर ये charge q which is placed here will experience force due to this, and that force is equal to q into E. Why? Because force is equal to charge multiply the electric field strength. Electric field strength is this, the force experienced by the unit charge. Here we are using the unitary method. The cost of one pencil is 1 rupee and the cost of 5 pencils will be 5 rupees. Means the force experienced by a unit positive charge is E, and the force experienced by the Q charge will be F is equal to Q into E. It is quite simple. Okay. Remember one thing. Remember one thing, that whenever this charge is placed, this charge will experience force due to this source charge, but source charge will not experience the force due to itself. मतलब कोई भी चार्ज जो होगा वो अपनी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरा कोई चार्ज जो आपने उसके रीजन के अंदर, उसके फील्ड के अंदर रखा है, दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस. दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वी विल स्टडी. ओके. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने यहां से अभी किया, बताइए मुझे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ scalar or a vector quantity? Scalar means the quantities which are independent of the directions, means direction has nothing to do with the quantities which are classified as scalar quantities. But electric field intensity, now tell me what is electric field intensity? And electric field intensity, whether it is a scalar or a vector quantity, it is a vector quantity. Why? Because I have already told you that electric field intensity means the force experienced by a unit positive charge due to the source charge. So if this source charge is positive, then the electric field direction of the electric field intensity, strength of the electric field intensity will be outwards. And if this charge is taken as negative, then this unit positive charge will move towards it, and the electric field direction of the electric field intensity will be towards it, radially inwards. So direction is there, so it is, क्या है ये? It is a vector quantity. And what is its SI unit? SI unit E is equal to F upon Q. It is Newton upon Coulomb. Okay. The test charge used to measure electric field at a point should be vanishingly small. Why? I have already मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दिया था कि this charge which you are supposing as a unit, which you are supposing as a test charge must be of very small magnitude, because if this charge is not small, if its charge is comparable to the charge of the source charge, then what will happen? It will produce its own field, and there will be interference of the two fields, and the electric field intensity which we are trying to calculate at this point will not be exactly the actual value, but it is different from the actual value. Why? देखिए, अगर आपका ये चार्ज Q नॉट जो है वो स्मॉल नहीं होगा, बड़ा होगा, यानी कि उसका साइज और इसके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, देयर इज नॉट कंपेरेबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर करेंगे, और यहां पर ये चार्ज जो है इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसकी वजह से निकालना चाहते हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं होगी जो एक्चुअल वैल्यू, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो आंसर आई हैव रिटन, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द फील्ड इट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ? क्या यही मैंने अभी आपको यहां बताया था कि क्या जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अपने ही फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है? द आंसर इज नो. कोई और चार्ज जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने प्लेस किया वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मगर वो चार्ज जो खुद
अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. A charged particle is free to move in an electric field. Will it always move along an electric line of force? ठीक है. Just deliberating upon this question. इस क्वेश्चन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक, first of all, what are electric lines of force? Before doing this, we will do what is electric lines or what are electric lines of force. तो electric lines of force क्या होती है? Electric lines of force are the imaginary path, ठीक है. It can be straight or curved, along which a unit positive charge will move if free to do so. ठीक है. Electric lines of force basically are the imaginary lines, but the concept it conveys, but the concept it explains, that is of the electric field, is a very much real concept. ठीक है. तो what are electric lines of force? For example, ये मैंने ले लिया एक सिंगल चार्ज which is plus Q. इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी तक हमने ये पढ़ा. यहां पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक क्यू नॉट चार्ज जो है वो प्लेस करूंगी, तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स आउटवर्ड्स. यानी कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां को इंटेंड करेगा? बाहर जाने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एग्जिस्ट देयर. तो ये जो लाइन है, जो पाथ है, इस केस में सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में जो पाथ इसने फॉलो किया, वो पाथ होगा मेरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है. तो इस केस में ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती है. अब देखो, इफ वी हैव टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर इज, फॉर एग्जाम्पल, इट इज माई नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. क्या होगा कि आपकी ये चार्ज, मैंने ये ऐसे आप दिखा सकते हो, मैंने ऐसे दिखाया है. ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज, इन दिस केस इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. पॉजिटिव टू, ये जो स्पेस दी हुई है, इक्वल स्पेस एंड पैरेलल लाइंस, दीज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है. अब देखो, अगर इसमें मैंने एक चार्ज जो है वो कोई भी चार्ज, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेती हूं प्लस Q, उसको रिलीज करेंगे हम. इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये यहां पर एंटर करता है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. तो ये जब इसके अंदर जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स. और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वहां पर एक्सेलरेशन पार्टिकल को मिलेगी. तो ये पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल जो पहले रेस्ट पे था, आपने इसको आगे भेजा. ठीक है. और ये एंटर कर रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है. जब ये जाएगा तो ये यहां पर एक्सेलरेट होगा एंड इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये एक केस हुआ. दूसरा केस कि अगर इसके पास पहले से ही थोड़ी बहुत इनिशियल वेलोसिटी थी और आपने इसको इसके अंदर एंटर करवाया, तो जो इसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी थी और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो दोनों ही जो वेलोसिटीज है वो एडअप हो जाएंगी और इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की जब ये इसमें एंटर करेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. बट एक थर्ड यहां पर कंडीशन आती है कि ये जो आपका पार्टिकल है ये अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर नहीं कर रहा, बल्कि ये एंटर कर रहा है मेकिंग सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. उस केस में इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा.
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, उसमें एक्सेलरेशन आएगी और वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वहां पर एक्चुअली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है अलोंग द वर्टिकल, इसलिए उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वही फाइनल कंपोनेंट होगा। और जो आपका हॉरिजॉन्टल फाइनल कंपोनेंट है वो बिकॉज ऑफ दी दिस इलेक्ट्रिक फोर्स वो बढ़ जाएगा। तो दो वेलोसिटीज जब एक्ट करेंगी तो जो उनका रिजल्टेंट होगा, दो वेलोसिटीज एक्ट करेंगी एट अ 90 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली वो बाय वेक्टर लॉज से निकलेगा समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम, और वो 45 डिग्री पे एक्ट करेगा। इसका मतलब होगा कि आपकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन पार्टिकल नहीं जाएगा, बट वो कुछ कर्व्ड जो पाथ है वो फॉलो करेगा। ठीक है, नाउ कम्स कि अगर आपकी जो पार्टिकल है वो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर में अगर वो आएगा, सपोज यहां पर मैंने ले लिया एक प्लस क्यू चार्ज, तो जब वो एंटर करेगा तो इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ये जैसे बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और कब जो है वो कर्व्ड पाथ बनाएगा। तो ये केसेस मैंने यहाँ क्लियर कर दिए और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electrostatic line of force is a continuous curve, that is a line of force cannot have sudden breaks, why not? ठीक है, अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कर्व की शेप में भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द सिंगल पॉइंट चार्ज दे आर स्ट्रेट, एंड बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस में अभी इसके बाद बताऊंगी दे आर कर्व्ड। तो इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दिस टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये इंटरसेक्ट करती है मींस कि एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आपके पास इसके ऊपर ये टेंजेंट और इसके ऊपर ये टेंजेंट, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि an electric lines of force is a continuous curve, that is a line of force cannot have sudden breaks। यानी कि जैसे मैंने ये बनाया, ये continuous curve आती है, इसके बीच में ब्रेक कहीं ये टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि जहां पर ये लाइन टूट गई, बिकॉज ये जो लाइन है ये कैसे बनती है, इट इज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? जैसे ये आपका अगर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर आप जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, इसके कारण ये बेसिकली वो डायरेक्शन दे रहा है। तो जहां पर आपका ब्रेक आ गया उसका मतलब होता है कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसके कारण मौजूद नहीं है, एब्सेंस है। जबकि ऐसा नहीं होता, अगर ब्रेक आया तो इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द दिस चार्ज इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। ये आप यहां से क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इट इज द पाथ अलोंग विच, ये भी मैंने बता दिया। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट्स इंपॉर्टेंस इज दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण? ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज का, एरोज का, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, दे आर पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड्स। अब आ गया नेगेटिव, इसमें भी स्ट्रेट लाइंस हैं, सिर्फ किस चीज का फर्क है?
रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे दो पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी। They will point radially outwards। ठीक है, अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाएंगी। ठीक है, लेटरल प्रेशर की वजह से ये रिपल्शन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। नाउ वी विल हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। यू नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव, और कहां जाती हैं, टर्मिनेट कहां होती हैं, नेगेटिव में। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पॉजिटिव वाली बाहर को जाएंगी और नेगेटिव वाली अंदर को आएंगी। बिकॉज ऑफ दिस ये लगाएगा एक दूसरे के ऊपर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्सप्लेन करती है किसको, अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लेट्स कम। ड्रॉ लाइंस ऑफ सॉरी दिस इज अगेन pictorial representation. Draw lines of force to represent a uniform electric field. This is parallel and equidistant lines represent करेंगी uniform electric field को. An electron and a proton are kept in the same electric field. Will they experience same force and have same acceleration? Okay, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहां पे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, जब मैंने डायरेक्शन दिखाई, अगर डायरेक्शन इस तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट आपकी नेगेटिव है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स विल बी QE. एन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट to that of electric field. Since the charge on electron and proton is same in magnitude, so electric field uniform है. ठीक है, uniform means its की magnitude and direction is same at all the points. So क्या होगा, the force experienced by the proton and the electron will be same. तो हम लिखेंगे the proton and electron will experience the same force but in the opposite directions. Now you know this force is equal to mass into acceleration. मास किसका, पहले केस में प्रोटॉन, और एक्सेलरेशन भी प्रोटॉन की ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग 1 by 2, क्या आया, ये कैंसिल हो गया। इट इज MP upon AP is equal to ME upon AE is equal to QE upon QE. ये cancels out, तो it implies MP upon ME is equal to AE upon AP. तो बताओ एक्सेलरेशन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यहां से देखो मास ऑफ द प्रोटॉन, और यहां पर ये न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सिंस किसका मास ज्यादा है, सबको पता है। MP इज ग्रेटर देन ME, देयरफॉर AE विल बी ग्रेटर देन AP। जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा। हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges
3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. तो मैंने एक चार्ज ले लिया ये और एक चार्ज ले लिया ये. This is my QA equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb, and the distance between them is 20 centimeter. You can say it is 0.2 meter. Okay. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Let us say this is the midpoint O and we have to find out the electric field at this point. ठीक है, याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार मैं रिपीट कर रही हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यहां पर चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज नहीं है तो हमारा ये मत सोचना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यू हैव टू अज्यूम इट, यू हैव टू इमेजिन इट कि इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. आपको दिखेगा नहीं, आप सोचोगे ओहो मैं कैसे निकालूं. तो यहां पर आपने अपने दिमाग में हाइपोथेटिकली कंसीडर कर लेना कि यहां पर आपका एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है. और अगर यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है तो वो उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेट अस से दैट इज Fa. तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है, यहां तो है ही पॉजिटिव, तो उसकी वजह से जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी आउटवर्ड्स. इट इज A पॉइंट, इट इज B पॉइंट, इट इज टूवर्ड्स B. ठीक है. अब इस चार्ज की वजह से भी सोचो यहां पर हमारा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तब आपने जिस पॉइंट के ऊपर निकालनी है वहां ज्यूम कर लेना माइंड में कि हाँ यहां पर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है. तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये माइनस वाला चार्ज है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो किस डायरेक्शन में होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव की तरफ. तो ये आ गया मेरा EA एंड EB. आप देख रहे हो EA एंड EB दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो नेट जो हमारी फोर्स, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो रही है, वो एक की सेम डायरेक्शन में है और ऐड होगी. तो हम लिखेंगे EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसकी वजह से यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो तो 1 ही आएगा, 3 × 10⁻⁻⁶. और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आ गया. ठीक है. और अलोंग OB. ठीक है. नाउ EB भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों की. और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, OB. देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर आ जाएगी, EA प्लस EB. और वो क्या होगी, अलोंग वो भी OB के. ठीक है. सो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. ये आ गया, आप इसका ये मैग्नीट्यूड रखो. ठीक है. 1/4 पाई, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ना, दोनों को ऐड ही करना हमने. तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है. हम वैल्यूज लगा देंगे. इसकी वैल्यू है 10⁹. ये आ गया 3 × 10⁻⁻⁶. और ये आ जाएगा 10⁻⁻1. और -1 का ऊपर जाके हो जाएगा -2 हो गया ना, ऊपर जाके ये हो जाएगा. और मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 × 9 18, 18 × 3 54. 54 10⁻⁹ प्लस 2 क्या आया, 54 × 10⁻³ प्लस 2 5. ठीक है. न्यूटन पर कूलम. इसको मैंने एक डेसिमल प्लेस तक अगर लिखना है तो 10⁻6 आएगा. क्यों, मैं एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, एक के साथ डिवाइड करूंगी, तो मेरा आंसर यहां पर निकल जाएगा. पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया. और कहां पर है वो, अलोंग, उसकी डायरेक्शन है OB के अलोंग. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁹ इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि
ये मेरा A है, दिस इज B, ठीक है। अब इसी O पर मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, नाउ इट विल नॉट रिमेन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बिकम फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हो, और वो क्या है, हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O due to a charge is placed at A and B is किसके बराबर है, 5.4 इंटू 10⁻⁻, प्लस 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये वाला चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज F इज इक्वल टू -Q इंटू E इन अ डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है तो ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁻ इंटू E किसके बराबर है, 5.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा ये आ जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ना, 15 और 54, 26, 5, 2 and 7, दिस इज 810, और यहां पर भी 10 नीचे आ जाएगा ना, तो ये मेरा 8.10, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 न्यूटन्स, ठीक है। दिस इज माय आंसर। ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैंने यहां पर डायरेक्शन दिखा दी है ऑलरेडी, माइनस लेके चल रहे हैं हम, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। Calculate the electric field strength required to just support a water drop of 10⁻³ kg and having a charge of this much, ठीक है। अब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। सपोज ये मेरा एक कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर है, वेट को तो हमेशा नीचे ही एक्ट करना है, इट इज mg। और देखो ये यहां पर जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू E, एंड इसका वेट जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज mg। तो अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल होंगी, तब हम कहेंगे कि ये जो आपका ड्रॉप है ये क्या कर रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट, मतलब इसका वेट डाउनवर्ड में है और इसको सपोर्ट कर रही है ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका चार्ज ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहां पर आपने QE को पुट करना है mg के बराबर, E को पुट करना है, E निकालना है mg/Q, m दिया है 1 पॉइंट, आई थिंक नहीं, m इज गिवन एज 10 की पावर -3, it is 9.8 and charge is 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। this goes and this goes, ठीक। 16 और 98 अगर आप काटेंगे, आई थिंक इट इज 6.125, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, 6.125 या +19, क्लियर। इट इज 16 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। I think it is clear. Now let's come to the next question. How many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may just float in an electric field intensity of this directed upwards? First of all, I'll draw the diagram. ठीक है, electric field is directed upwards.
तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर, दिस विल बी माई नेगेटिव प्लेट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो एक क्वाइन है, उसमें से आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने। जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो आपका क्वाइन क्या बन जाएगा, क्वाइन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। और ये सपोज मेरा क्वाइन है, जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सपोज इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये कहां को जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ऊपर की तरफ, और वेट इसका नीचे आ रहा है, तो ये फोर्सेस जो होंगी दोनों आपस में बैलेंस करेंगी। यहां पर हमें चार्ज नहीं दिया गया है, यहां पर हमें चार्ज नहीं दिया गया, बल्कि यहां पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव सो दैट इट जस्ट हैव अ चार्ज क्यू यहां पर आए, तो वो हमें अब यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आई नो, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, और क्यू की जगह मैं लगाऊंगी एन ई। इट्स क्लियर। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एन, जो चीज निकालनी है उसको यहां रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो मास है हमारा 1.6 ग्राम, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी किलोग्राम में, वो आ गया। ये याद रखना कि जब भी आपने जो चीज भी सब्स्टिट्यूट करनी है, इट शुड बी इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ, मास इज 1.6 ग्राम, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड ई इज गिवन एज 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। Now substitute the values. G is 9.8 and E all of you know by now. It is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. तो वो आ गया 1.6 into 10 to the power -19 coulomb into 10 की पावर 9. Okay. This and this cancel out. 9.8 10 to the power -19 और ये +9, यहां पर -10 हो जाएगा, यहां -3 था, और ऊपर जाके ये +10 बन जाएगा। इट इज 9.8 into 10 raised to power 7 electrons is the answer. I hope you people have understood what I have taught you today, as well as the numericals which we have done. In case you have any doubt, you are free to ask me, and I'll be sending you these sheets also. So till my next lecture, goodbye. Stay home, stay safe, have a good time. Thank you.